everyone. My name is Madhukar. I am assistant professor at Krishna Engineering College, Ghaziabad. In today's lecture, we will discuss JavaScript forms, that is how to validate forms of HTML using JavaScript. In the first slide, we will basically discuss, as you all know, how to create forms using HTML. We have HTML tags to create HTML page and to do HTML coding. We can use as heads, and with the help of form tag, we can also create a form using HTML, right? So we can take different inputs, different fields to take inputs, okay, and we can have other field, that is password, because in generally for validation, for forms validation, basically we try to validate password, we try to validate email, okay, we try to validate name, we try to validate others fields. So and you all know how to create a form, so it is very easy to do validation using JavaScript. Just initially we have to create a form. Once you know how to create a form, how to create a basically field using HTML, so we can generally create a form. As here I have taken that is username of input field for username, input field for password, and a submit button, okay, to submit basically, and a button. While on clicking it, we have to run a function, that is create function, where JavaScript scripting coding is being done. So initially we know how to create a form, because in the previous lectures we have discussed how to create a form using HTML or in HTML, and in this lecture basically we will discuss how to validate, okay. So first one हमें ये पता होना चाहिए कि हमें फॉर्म्स को रेफरेंस कैसे करना है, क्योंकि आप यू कैन बेसिकली आप ना HTML का यूज़ करके फॉर्म्स को इजीली क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्म टैग, ओके. You can basically take input field, different kind of fields to take inputs, okay, but in the first steps you have to make reference to JavaScript so that your forms could be linked to the JavaScript, right? So firstly you have to create a form using HTML, and then for linking and for referencing, definitely we will use that particular get element by id function, okay. We will use this particular field, that is get element by id, okay. With this method or with this function, basically we reference the HTML form to JavaScript code. तो दिस इज द बेसिक स्टेप. इफ यू वांट टू फैच, यानी अगर आपको कोई वैल्यू HTML फॉर्म्स के फील्ड से पिक करनी है, यानी फैच करनी है, तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर फील्ड की आप क्या करोगे, उनका आईडी फैच करोगे, उस आईडी की हेल्प से यू विल फैच वैल्यूज using this method, okay, and then we will be able to reference the forms of HTML to JavaScript, okay. That's basic syntax of this particular method is get element by id. This word particular will be, E will be in caps, B also in capital letters, and I also in capital letter. Basically this method fetch the value if we use dot value, okay, with the help of the id of that particular field, okay. So as you can see the example, number one, variable name, I have taken a variable, that is variable name, okay, and then document dot get element by id, and this will be the id of element, यानी कि the field, okay, from where you want to fetch the value, और जिस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड को आप क्या कर रहे हो, लिंक करना चाहते हो जावास्क्रिप्ट. क्योंकि जावास्क्रिप्ट बेसिकली जनरली होता क्या है कि वैलिडेशन में हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू वैलिडेट आवर फॉर्म, वी ट्राई टू मैच द एंट्रीज, ओके, वी ट्राई टू मेक सम सॉर्ट ऑफ कंडीशंस, ओके. दैट्स व्हाई वी ट्राई टू वैलिडेट द फॉर्म. क्योंकि आपको पता है एग्जाम्पल में जनरली होता क्या है, जब भी हम लोग किसी भी पेज पर साइन अप करते हैं, तो हम लोग अपनी नेम and then we use our mail IDs and then we generate a password. अब क्या होता है कि ये एक्चुअली क्या है कि एक नॉर्म्स है, यानी कि कुछ कंडीशंस है कि हमें एक पर्टिकुलर टाइप का ये हम लोग क्या कर सकते हैं, मेल ले सकते हैं, ईमेल आईडीज़ ले सकते हैं, और हम पर्टिकुलर टाइप के हम पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि जैसे काफ़ी जगह पे ऐसा है कि क्या आपको फर्स्ट लेटर या कोई भी लेटर आपको कैपिटल लेना है, एक लेटर
आपको एक डिजिट्स नंबर भी लेना है, आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी लेना होता है ना। तो जनरली होता क्या है, ऐसे कुछ लिमिटेशंस, कुछ वैलिडेशंस होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें फॉलो अप करनी पड़ती है, और हम उन पर्टिकुलर फॉलो अप करने के लिए हम क्या करते हैं, वैलिडेशंस लगाते हैं, जिससे क्या हो कि यूज़र जब भी हमारे पेज पे साइन अप करे या पेज को एक्सेस करे तो वो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या करे, फॉलो अप करे। ओके, सो now using the id we can make the reference, and then again to get the value of html element, अगर आपको उस HTML एलिमेंट की अगर वैल्यू फेच करनी है, जैसे कि मैंने बताया कि गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम लोग क्या करेंगे, लिंक करेंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर जावा स्क्रिप्ट से, ओके, टू द फील्ड। अब क्या होगा, जब इस एलिमेंट को हम इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू हम जब लिंक कर देंगे तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टास्क रहेगा वो ये होगा कि हम उस आईडी का, उस एलिमेंट की जो आईडी है, उस आईडी पर जो वैल्यू है यानी कि डॉट वैल्यू का यूज करके वी विल try to fetch the value, extract the values, okay, so that we could be able to compare, we could be able to match, okay, for certain condition, okay. Next is, next क्या है, अब you have fetch the value, आपको वैल्यू फैच होना आ गया, यानी आपने क्या यूज किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी नेम डॉट वैल्यू। नाउ यू, अब क्या होगा कि उस पर्टिकुलर वैल्यू को आपने किसी रेफरेंस वेरिएबल में आपने क्या होगा, सेव कर लिया होगा, किसी वेरिएबल, पर्टिकुलर वेरिएबल में सेव कर लिया होगा। अब क्या होता है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म्स पर हम जब सबमिट बटन क्लिक करते हैं, यानी जब भी फॉर्म्स में जैसे अगर आप साइन अप कर रहे हो, जब भी आप साइन अप पर क्लिक करोगे तो उसके बाद क्या होगा, वो कंडीशंस क्या होंगी, आप वो कंडीशन मेट की जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, दे विल चेक द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड्स, ऑफ दोज पर्टिकुलर फील्ड्स, है ना। तो क्या होगा, अब क्या होता है कि अब नाउ नेक्स्ट टास्क इज, हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर फॉर्म को सबमिट करना। अब सबमिट जब होगा, सर्वर तक डेटा जाने से पहले, यानी कि जो आपकी रिक्वेस्ट है वो जब तक सर्वर तक जाएगी, उस टाइम पे क्या होगा कि वो आपके एक इवेंट लिसनर होगा जो कि हमारा क्या सबमिट बटन रहेगा, उसके थ्रू क्या करेगा, वो उन पर्टिकुलर प्लेसेस को वैलिडेट करेगा, यानी मैच करेगा, कंडीशंस को ट्रैक करेगा, मैच करेगा, और जब कंडीशन मैच हो जाती है यानी एवरीथिंग इज ओके, तब क्या होगा, वो आपके रिक्वेस्ट को, अपने रिक्वेस्ट को कहाँ सेंड कर देगा, सर्वर तक सेंड कर देगा, है ना। तो जनरली हमें सबमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबमिट बटन का यूज करते हैं, है ना, टू सबमिट द वैल्यू दैट हैज बीन एंटर्ड इन द फॉर्म, राइट। तो उसके बाद क्या होता है, जब भी हमें वैलिडेट करना होता है तो हम सबमिट, यानी हम एक इवेंट जनरेट करते हैं, उस इवेंट से क्या होता है, हमारे एक्शंस परफॉर्म होते हैं, और जब एक्शन परफॉर्म होंगे तो वहाँ पे हमारा वैलिडेशंस होगा, हमारी फील्ड्स चेक की जाएंगी जहाँ पे हमने कंडीशंस लगा रखी हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आगे का टास्क परफॉर्म करेंगे। जब अगर कंडीशन मैट हो गई तो फिर वो रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी सर्वर तक, अगर मैट नहीं होती हैं तो क्या होगा, अगेन इट विल सेंड यू अ मैसेज, ओके, अलर्ट कर देगा कि दिस फील्ड इज रॉन्ग, दिस फील्ड इज रॉन्ग, देन you will have to make certain correction in that particular field, okay. now जनरली क्या होता है, हम वैलिडेट क्या करते हैं स्पेसिफिक फील्ड, लाइक जैसे कि हम पासवर्ड वैलिडेशन करते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है, कभी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एक पासवर्ड का एक सिंटेक्स फॉलो, यानी एक फॉर्मेट होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। मतलब जैसे बताया ना कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, कोई स्मॉल लेटर्स में हो, और आपका नंबर एक डिजिट होना चाहिए मिनिमम, और मस्ट बी ए स्पेशल कैरेक्टर्स। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम वी ट्राई टू वैलिडेट आवर पासवर्ड, राइट। दूसरा क्या हो सकता है कि वी हैव टू मैच द पासवर्ड, यानी कि आप पासवर्ड मैचिंग भी करते हो, यानी कि जब होता है ना कि री एंटर द पासवर्ड, आपने फॉर्म्स में देखा होगा काफ़ी जगह फील्ड्स होती हैं कि जस्ट एंटर द न्यू पासवर्ड एंड देन अगेन री एंटर द न्यू पासवर्ड, या फिर ऐसे आप देख सकते हो कि आप पासवर्ड मैच नहीं करते हो, आप जैसे अकाउंट नंबर, जनरली होता क्या है, काफ़ी जगह पे ऐसा होता है कि आपके जैसे पेटीएम वगैरह है या कोई एप्लीकेशन है, वहाँ पे जब भी आप मनी ट्रांसफ़र करते हो तो वो क्या करता है, आपके अकाउंट नंबर्स को री एंटर कराता है, एंड इफ़ वो द अकाउंट नंबर्स आर सेम, देन what will happen, the action is being performed, then the action will be performed, right, क्योंकि आपके एंट्रीज जब मैच हो जाती है, तो हम जनरली ऐसा करते हैं, चाहे वो अकाउंट नंबर की बात हो या फिर नेम हो या फिर पासवर्ड मैचिंग हो, क्योंकि री एंटर इसीलिए कराते हैं कि पासवर्ड की, अगर किसी पर्सन ने कोई पासवर्ड डाला है तो इट अगेन अगर आप एंटर कराते हो तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो पासवर्ड उस पर्सन को रिमेंबर्ड है, ऐसा नहीं है कि वो तुक्के में लगाया हुआ हो। नेक्स्ट होता है हमारे पास मेल वैलिडेशन, एनी हाउ यू हैव टू वैलिडेट द मेल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक मेल का एक अपना सिंटेक्स, अपना एक फॉर्मेट होता है टू राइट अ मेल। अब क्या होता है, क्योंकि बेसिकली हम जनरली करते क्या है, यूज़र नेम डालते हैं, फिर हम लोग @ फिर हम डोमेन नेम लिखते हैं, है ना, जैसे कि gmail.com, राइट। तो ये एक फॉर्मेट होता है मेल का फॉलोअप, है ना। और भी होते हैं, है ना, कि जैसे कि हमारे पास, और अगर मैं KC का तो kc.ac.in, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फॉलोअप करते हैं सर्टेन मेल्स का।
तो इसके बाद क्या होता है, वी हैव टू ऑल्सो वैलिडेट द मेल्स, क्योंकि मेल का फॉर्मेट एक स्पेसिफिक है और आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, यूजर्स को वैलिडेट करना है कि आप एक सर्टेन काइंड ऑफ मेल को ही एंटर कराइए, जिससे कि क्या हो कि फॉर्म्स आगे सबमिट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो हमारे पास, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट फॉर्म्स पासवर्ड वैलिडेशन, हाउ टू वैलिडेट द पासवर्ड। ओके, तो जनरली होता क्या है कि जब भी वेबसाइट जितनी भी होती है वो ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी यूज़र लॉगिन नहीं कर सकता इजीली आपके अकाउंट को जब तक आप खुद ना लॉगिन करें, क्योंकि या तो फिर आप उसको पासवर्ड बता दो। इफ़ अनऑथराइज्ड कोई भी यूज़र आता है और ही और शी डज नॉट नो योर पासवर्ड, तो ही और शी विल ट्राई टू एंटर योर पासवर्ड, और उससे क्या होगा कि अनऑथराइज पर्सन एक्सेस कर लेगा अगर उसको पासवर्ड पता होता है। तो क्या होता है, इसीलिए क्या होता है कि पासवर्ड वैलिडेशन इज ऑल्सो नेसेसरी, कि जिससे क्या हो कि आपका जो एक्यूरेट पासवर्ड है, एग्जैक्ट पासवर्ड है, वो आपके फॉर्म से पड़े, और इससे क्या होगा कि एंट्रीज आप ही एक्सेस कर पाओ या फिर वही पर्सन एक्सेस कर पाए जो एक्चुअल में ऑथराइज्ड है। ओके, तो इसलिए क्या होता है, मोस्ट ऑफ वेबसाइट क्या करती है, यूजर नेम और पासवर्ड के लिए पूछती रहती है थ्रू लॉगिन। जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपने जो यूजर नेम डाला होगा, चाहे वो आपकी मेल आईडी हो या आपका कोई सर्टेन नेम हो और आपका पासवर्ड, ठीक है, रजिस्टर करते टाइम पे यानी कि आपको यू हैव टू क्रिएट अ पासवर्ड। ओके, देन इफ यू वांट टू लॉग इन देन यू हैव टू एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो इससे क्या होता है कि सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं फॉर पासवर्ड वैलिडेशन, वो उस फॉर्म्स में क्या होते हैं, वैलिडेट किए जाते हैं, मैचअप किए जाते हैं कि एक्चुअल में ये पासवर्ड सही है या नहीं है। ओके, जैसे कि हमारे पास क्या क्या हो सकता है, जैसे कुछ पासवर्ड ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास ये लिखा होता है ओनली अल्फा न्यूमेरिक इनपुट आर एक्सेप्टेड इन द पासवर्ड फील्ड, यानी कि आप अल्फा न्यूमेरिक फील्ड इनपुट ही आप एंटर कर सकते हो। या फिर इट शुड स्टार्ट विद अपर लेटर और एटलीस्ट वन अपर केस अल्फाबेट पासवर्ड, जैसे मैंने अभी बताया। या फिर एक स्पेसिफिक लेंथ का होना चाहिए, जैसे कुछ पासवर्ड होते हैं जो मिनिमम 8 डिजिट्स यानी 8, उनकी लेंथ 8 होनी चाहिए, यानी 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए कम से कम, है ना। ऐसा होता है क्योंकि बहुत स्मॉल पासवर्ड रिक्वायर्ड नहीं है, नहीं तो कोई भी 1 डिजिट का या 1 कैरेक्टर्स का पासवर्ड लिखेगा और चल देगा, नहीं। सो एक सर्टेन लेंथ होती है उसकी, मैक्सिमम और मिनिमम तक। और क्या हो सकता है कि 1 न्यूमेरिक मस्ट बी यूज इन द पासवर्ड, यानी कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी यूज़ करनी चाहिए, या फिर इसकी एक मिनिमम या मैक्सिमम लेंथ हो। तो ऐसे कुछ है पैरामीटर्स हैं जो हम फॉलो अप करते हैं, लाइक टू क्रिएट अ पासवर्ड, है ना, क्योंकि या तो इनपुट फील्ड्स की बात हो या फिर उस अपर केस स्मॉल केस लेटर स्पेशल कैरेक्टर्स की बात हो रही है या उसकी लेंथ हो रही है, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड पासवर्ड वैलिडेशन। ओके, नेक्स्ट, अब होता क्या है, जावा इसके बाद जो कोड है इनिशियली गेट्स एन एलिमेंट बाय द आईडी, यानी कि आपने वो फील्ड जो ली होगी अपने एचटीएमएल फॉर्म में, राइट, उस एचटीएमएल फॉर्म की एक आईडी होगी जिससे वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा, राइट। अब जैसे मैं बोलूँ मैंने एक इनपुट फील्ड लिया, मान लो मैंने एक इनपुट लिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, मैंने ले लिया एक टेक्स्ट नाम का एक इनपुट ले लिया, राइट। अब मैंने इसका क्या किया, इसकी आईडी दे दी, आईडी सपोज करो मैंने लिख दिया वैल्यू। अब क्या होगा, ये जो आपका ये इनपुट है यानी टेक्स्ट का जो इनपुट है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी आईडी क्या होगी, वैल्यू, यानी कि हाँ आपको क्या करना है, यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट विद द वैल्यू, क्योंकि जैसे आप वैल्यू को फेच करोगे यानी वैल्यू पे रन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड का टेक्स्ट मिल जाएगा, है ना। तो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर आईडी टू रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर कंटेंट। ओके, तो क्या होता है फिर उसके बाद क्या होता है, जब हम लोग उस आईडी से क्या करते हैं, आईडी के थ्रू हम एलिमेंट फेच करते हैं और उसकी फिर वैल्यू लेते हैं, राइट। वैल्यू फेच करने के बाद वी ट्राई टू मैच द कंडीशंस। ओके, अब कंडीशंस कैसे मैच होती है, जनरली पासवर्ड में क्या होता है, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, आप एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं दे सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको A to Z तक पूरी आप क्या करो अल्फाबेट लिख के दे दो, कि आप क्या कर सकते हैं एक पासवर्ड के अंदर आप A से लेकर Z तक स्मॉल, A से लेकर Z तक कैपिटल, आप इस तरीके का लेटर यूज़ कर सकते हो। अगर आप इस तरीके का लिखोगे तो बहुत ही लंबा लेंदी हो जाएगा। तो होता क्या है, उन पासवर्ड्स को वैलिडेट करने के लिए हम शॉर्ट चीज़ें यूज़ करते हैं, यानी हम लोग कौन से ग्रामर यूज़ करते हैं, डेट इज़ रेगुलर एक्सप्रेशंस। हम जनरली क्या करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन जो आपने ऑटोमेटा में भी पढ़ा होगा, इफ़ यू ऑल रिमेंबर दिस, कि रेगुलर एक्सप्रेशंस में क्या होता है, वी जनरली क्रिएट अ रेगुलर ग्रामर्स, और उसमें हम क्या करते हैं, अपने रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हम सर्टेन लिमिट्स को दे सकते हैं पासवर्ड में। तो ये होता है कि आप क्या कर सकते हो, अपने रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू अपनी चीज़ों को वैलिडेट मतलब सम सॉर्ट ऑफ प्रिसाइज कर सकते हो, यानी छोटा कर सकते हो उस चीज़ों को। तो हम लोग पासवर्ड वैलिडेशन की बात हो या फिर मेल वैलिडेशन की बात है, तो हम वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने जनरली हम लोग पासवर्ड्स जो है यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू वैलिडेट।
अब रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, एक पॉइंट ये भी है कि हाउ टू क्रिएट रेगुलर एक्सप्रेशन इन जावास्क्रिप्ट। तो रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली पैटर्न होता है ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे मैं बोलूँ ना कि आपको A to Z, तो यानी इसका मतलब एक पैटर्न बन गया, क्या A से लेकर Z तक के आप क्या कर सकते हो, कैरेक्टर्स ले सकते हो, राइट। और क्या हो सकता है, जो पैटर्न है, जो पैटर्न मैचिंग के लिए यूज़ किया जाता है ना, जैसे सर्च एंड रिप्लेस फंक्शन की तरह, यानी आप मैच करो और उसको रिप्लेस कर लो, या फिर उन ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ भी किया जाता है जिसकी एक प्रॉपर्टीज़ या फिर मेथड्स होते हैं जनरली। क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन चलते तो वैसे ही है ना, क्योंकि जैसे ऑटोमेटा में पढ़ते हो वैसे ही यहाँ पर है। आपको क्या है ना, आपको लेंथ ज़्यादा ना लिखनी पड़े, यानी आपको वैलिडेट करने के लिए पासवर्ड्स का हर एक फील्ड ना देनी पड़े। तो क्या होता है, हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन पे कन्वर्ट कर लेते हैं अपने पर्टिकुलर सिंटेक्स को, और जिससे क्या होता है कि हमें ज़्यादा लेंथी सिंटेक्स ना लिखना पड़े, हम शॉर्ट में ही क्या कर सकते हैं, उसको एक पैटर्न बना के वी कैन ईजिली मैच। अब इसमें यहाँ सिंटेक्स क्या है, जैसे कि एक पैटर्न बनाया, कोई पैटर्न होगा और उसका मॉडिफायर लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि पैटर्न क्या होगा, वही जैसे यहाँ पे एक मैंने एक वेरिएबल लिया, उस पैटर्न के अंदर एक सेव किया हुआ क्या पैटर्न, AI। मतलब क्या है कि जो मेरा पासवर्ड रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, AI के फॉर्मेट में रहेगा, यानी कि उसमें AI होगा। और यहाँ पे ये क्या है, इसका मॉडिफायर, ठीक है। जनरली ये डिनोट समथिंग एल्स। तो इसकी बात हम लोग अभी करते हैं। जैसे अगर मैं आगे की बात करूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन में देखें, जैसे कि हमारे मॉडिफायर्स की बात हो रही है, राइट। अब मॉडिफायर क्या है, आर यूज टू परफॉर्म केस सेंसिटिव एंड ग्लोबल सर्चेज। मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक पैटर्न लिख रहा हूँ, क्या मैंने लिखा, एक पैटर्न लिखा कि आपको क्या करना है, जैसे कि इस तरीके से ले लेता है कि A से लेकर Z तक, आपको A से लेकर Z तक के क्या करना है, सारे फिर आप यू कैन यूज एनी कैरेक्टर्स लाइक A से A to Z, ओके। और क्या हो सकता है, अगर मैं इस तरीके से लिख के अगर मैं यहाँ लिख दूँ I या फिर G, अब मैंने लिख दिया I, जैसा अभी प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में हमने लिखा था। तो इसका मतलब क्या है कि केस सेंसिटिव मैचिंग करेगा। मतलब क्या होगा कि आपका जो पैटर्न रहेगा वो सेम होना चाहिए, बिल्कुल उसी के तरह, यानी वो केस सेंसिटिव रहेगा। यानी अगर आपका कैप्स लेटर है तो कैपिटल लेटर ही होना चाहिए। इफ़ यू राइट इन स्मॉल लेटर इट विल बी रॉन्ग, वो मैच नहीं कर पाएगा। तो ये थोड़ी स्ट्रिक्ट रिजिडनेस हो जाती है मॉडिफायर्स का वर्क जो होता है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे अगर मैं जी कन्वर्ट कर दूँ, मैं लिख दूँ जी, तो जी से क्या होगा, जी से क्या होगा कि परफॉर्म है ग्लोबल मैच। मतलब क्या करेगा, वो सारे जितने एक पूरे सिंटैक्स में यानी पूरे सेंटेंस में जितने भी AI यानी A से लेकर Z तक के जितने भी रहेंगे, एक पैटर्न जैसे सपोज करो अभी मैंने लिखा था क्या, जैसे AI, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया जी। तो AI जितने भी वर्ड्स में पूरे सेंटेंस में जितने भी AI आएंगे वो सभी को मैच करेगा, यानी जितने भी रहेंगे सबको मैच करेगा, ठीक है। आफ्टर द फर्स्ट मैच, पहले मैच पे स्टॉप नहीं होगा, वो सारे पूरे एक सेंटेंस में जितने भी AI नाम से होंगे वो सबको मैच करेगा, ओके। और अगर मैं लिखता हूँ एम, तो वो क्या करेगा, मल्टी लाइन मैचिंग, यानी एक लाइन फिर सेकंड लाइन पे भी मैच करेगा, फिर थर्ड लाइन पे भी मैच करेगा, इस तरीके से वो मल्टी लाइन मैचिंग करेगा। यानी कि इस पर्टिकुलर मॉडिफायर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉपरली इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, अपने कंटेंट को, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रैकेट्स। अगर हम ब्रैकेट्स की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स लिखा था अभी, ये वाला जो ब्रैकेट है, तो इसमें क्या है, ब्रैकेट टू फाइंड अ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स। अगर आपको सिंपल लिखना है, अगर आपको सिंपल जैसे यहाँ पे यूज़ करना है, तो आप क्या करो, सिंपल सा उठाओ यहाँ पे। अगर आपको सिंपल, अगर रेंज ऑफ करेक्टर है तो सिंपल हो जाएगा ये। इसमें आपको रेंज ऑफ, अगर आपको रेंज ऑफ करेक्टर चाहिए तो आप क्या करो, डायरेक्टली आप क्या करो, अपना इस तरीके से आप एक रेंज ऑफ करेक्टर ले, जो मैंने अभी A से Z तक बताया था, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रेंज ऑफ कैरेक्टर्स ले सकते हो। यानी ब्रैकेट्स का रोल यहाँ पर आता है। अब ABC की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि फाइंड एनी कैरेक्टर बिटवीन द ब्रैकेट, यानी इसके बीच में जितने भी कैरेक्टर रहेंगे सबको फाइंड करेगा। नॉट लगा दिया यहाँ पे, तो ये करेगा इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं उनको ना मैच करके बाकी सभी को मैच करेगा। ऐसे यहाँ पे 0 to 9 तक डिजिट मैच करेगा, 0 to 9 तक नहीं मैच करके उसके अलावा सारी रहेंगी। इसमें क्या है, X और Y है, अल्टरनेटिव्स है, यानी कोई सा ही फाइंड कर लो आप, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है जावा स्क्रिप्ट फॉर्म्स पासवर्ड वैलिडेशन की बात करें तो अब दूसरा क्या है, यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं जो हमारे पैटर्न्स को मैच करने के लिए हेल्प करते हैं। यानी कि हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन। जैसे कि यहाँ पे एक मेथड है हमारे पास टेस्ट मेथड है यूज टू टेस्ट फॉर अ मैच इन अ स्ट्रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग को मैच कराने में हेल्प करता है, ओके। और उसके बाद रिटर्न क्या करता है, उसकी वैल्यू क्या रहती है, ट्रू और फॉल्स, यानी कि या तो वो ट्रू रहेगा या फिर वो फॉल्स रहेगा, ठीक है। मैच हुई तो ट्रू, नहीं हुई तो फॉल्स, राइट, टू स्ट्रिंग।
रिटर्न द स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, सिंपल। एग्जैक्ट टेस्ट फॉर अ मैच इन स्ट्रिंग रिटर्न द फर्स्ट मैच, जो पहला मैच आएगा उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है, एग्जैक्ट का। इसलिए हम लोग जनरली कहते हैं क्या, हम टेस्ट का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हमें क्या करना होता है, एक मैच परफॉर्म करना पड़ता है पूरे उसमें, है ना। दूसरा क्या है, मैच। मैच मेथड जो होते हैं वो भी स्ट्रिंग को मैच करते हैं। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन जो आपने दे रखा होगा, एक एरे भी रिटर्न करता है विद द मैचेस, और नल इफ नो मैचेस फाउंड, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्च। सर्च भी क्या करेगा, मैच करता है स्ट्रिंग अगेंस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन। मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मैच, पोजीशन भी बताता है, और -1 रिटर्न करेगा इफ नो मैच इज फाउंड, और ये केस सेंसिटिव भी होता है। तो जनरली ये मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने पासवर्ड्स को यानी अपने कंटेंट को, अपनी स्ट्रिंग्स को मैच कर सकते हो टू मेक सर्टेन काइंड ऑफ वैलिडेशंस, ओके। अब यहाँ पे एक है फॉर्म्स वैलिडेशन का एक एग्जांपल देखते हैं क्या है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमने फॉर्म्स क्या किया, क्रिएट किया हुआ है, राइट। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हो, यानी आप HTML टैग का यूज़ करो, देन हेड अपना हिसाब से HTML पेज बनाओ, और बॉडी, देन आप चाहे तो फॉर्म टैग यूज़ करो। यहाँ पे क्या इन्होंने टेबल्स की तरफ फील्ड यूज़ की हुई है, जैसे कि एक क्रिएट अकाउंट नाम का एक हेडिंग है जिसके अंदर डेटा हमने सेट पासवर्ड रखा हुआ है, और हमने एक फील्ड ली हुई है पासवर्ड नाम की जिसके अंदर आपको एक और यहाँ पे देखो एक आईडी ली हुई है P1। ये आईडी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी टू फैच द वैल्यूज़, ओके, और टू गिव रेफरेंस टू द जावा स्क्रिप्ट। ऐसे यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड का भी एक फील्ड है, सेम वैसे ही, और इसकी आईडी है P2। ये आईडीज़ हैं, ओके, ये क्या है, आईडीज़ हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज आईडीज वी वुड बी एबल टू मैच और टू मेक रेफरेंस टू द जावा स्क्रिप्ट। नेक्स्ट हमारे पास एक सबमिट, हमने क्या किया, बटन लिया हुआ है जिसमें क्या होगा हमारे पास, ऑन क्लिक पर जब भी हम उस पर इवेंट जनरेट करेंगे, यानी कि ऑन क्लिक, यानी कि जब भी क्लिक करेंगे तो वो क्या हमारे रेफर करेगा क्रिएट अकाउंट नाम का एक जावा स्क्रिप्ट मेथड को रेफर करेगा, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है, फॉर्म आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, यू हैव टू असाइन द आईडीज टू द इनपुट फील्ड, ओके। इन आईडी के बगैर आप क्या कर पाओगे, फैच नहीं कर पाओगे डेटास को, तो आपको वो आईडी सेट करनी पड़ेगी। फिर आपने क्या किया, स्क्रिप्टिंग का टैग का यूज़ करके जावा स्क्रिप्ट का टैग यूज़ किया फॉर जावा स्क्रिप्ट के लिए। फिर एक फंक्शन बनाया क्रिएट अकाउंट, जो इस बटन के ऑन क्लिक करने पर रन होगा। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये रन होगा, वहाँ से ये क्या करेगा, एन वेरिएबल में N1 V1 E1 इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं P1 P2, ओके, ये P1 है, P2 है, इस P1 की वैल्यू आएगी और P2 की वैल्यू आएगी कहाँ पे, P और CP में, ओके। ये यहाँ से रेफर करेगा P1 और P2 को, इन पर्टिकुलर आईडीज को, और उनकी वैल्यू फैच कर लेगा यहाँ से, ठीक है। अब वैल्यू फैच करने के बाद क्या होगा हमारे पास, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया लेटर्स नाम का, क्योंकि एनी हाउ वी हैव टू वैलिडेट द पासवर्ड। तो मैंने क्या बताया, यू विल यूज दिस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन। आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके आप क्या कर सकते हो, सर्टेन पासवर्ड के सर्टेन करेक्टर्स डिजिट्स को मैच कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे क्या है कि ये लिखा है 8 से Z, ठीक है, पासवर्ड आप सारे पासवर्ड लोगे A से Z से। उसके बाद डॉलर ये है, डॉलर डिनोट कर रहा है ये वाला टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, यानी आपको स्ट्रिंग के एंड तक जाना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, शुरू से स्टार्ट करेगा, एंड तक मैच करेगा, यानी आप पासवर्ड के अंदर A से लेकर स्मॉल और कैपिटल A और Z, A से लेकर Z तक के लेटर्स ही ले सकते हो, ये कह रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये टेस्ट करेगा, अगर लेटर्स में जो है डॉट टेस्ट करेगा क्या, नॉट इक्वल टू लेटर्स डॉट टेस्ट एन, अगर ऐसा होता है तो अलर्ट कर दे कि नेम इज इनकरेक्ट, यानी कि आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर में बोल दो कि वो इनकरेक्ट है, ठीक है। यानी कि आप सिर्फ अल्फ़ाबेट ले सकते हो, जैसे कि इसमें सेट किया हुआ। अगर आप देखो यहाँ पे एक सेकंड आपकी कंडीशन दी गई है P और CP, अगर पासवर्ड दोनों इक्वल नहीं है तो वो क्या करेगा, मना कर देगा, पासवर्ड डू नॉट मैच। ऐसे ही आप इनकी लेंथ चेक कर सकते हो, अगर लेंथ ग्रेटर देन 12 है तो बोल दे कि पासवर्ड की लेंथ ज़्यादा हो गई है, अगर लेंथ लेस देन 6 है तो बोल दे पासवर्ड लेंथ 6। तो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली मैच द पासवर्ड, यानी कि आप क्या कर सकते हो, इनका रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही आप मेल का भी कर सकते हो, मेल में भी सेम करना है आपको, इस तरीके से ही आप आईडी वैल्यू ले लो, आप मेल के अंदर ये जितने भी रेगुलर एक्सप्रेशन है इनको यूज़ कर लो, मतलब A से Z 0 से 9 तक की फील्ड्स ले सकते हो। आप @ लोगे, उसके बाद डोमेन नेम का एक फॉर्मेट सेट रहेगा, और उसके बाद फिर सेम वही वैलिडेट डॉट टेस्ट करेंगे, अगर नहीं मैच होता है तो इनवैलिड, अदरवाइज
वैलिड हो जाएगा वो, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी मैच द पासवर्ड और बी मैच द मेल, क्योंकि ये सबसे अच्छा स्पेसिफिक रोल ये प्ले करता है, मतलब रेगुलर जो एक्सप्रेशन है, यानी कि इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप सर्टेन सॉर्ट ऑफ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स आप ले सकते हो। अगर आप ये नहीं लोगे तो आप ना सारे कैरेक्टर्स को एक साथ नहीं ले सकते, तो आप सर्टेन रेंज ऑफ कैरेक्टर ले सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली मैच द मेल एज वेल एज पासवर्ड, ओके। So this is the basic concept or to match the forms validation and password validation and Gmail validation. Okay. So thank you so much.